जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना 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 सारी संगत नूं जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का जिन्ना गुणगान करिए मैनूं लगदा थोड़ा ही है। मैनूं तो ये लगता कि किवें गुरु जी की इन्नी कि गुरु जी का शुकराना करिए कि गुरु जी का रात दिन ही संगत जी गुरु जी का शुकराना वा। गुरु जी इन्नी ब्लैस करते हैं, इन्ना ब्लैस करते हैं संगत जी। मैं की दसां संगत जी, मैं तुहानूं अपने सत्संग सुणानी है। गुरु जी ने ना थोड़े दिन कि पहला ना की होया, मेरी बेटी दे ना इन्फैक्शन हो गया मेरी बेटी नूं पेट 'च। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਜਾਣ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਚਲਾ ਆਪਣਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਫਾਲਤੂ ਨਾ ਸੋਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਛ ਨੋਰਮਲ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਟਵਾਤੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਰਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੋਰਮਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਚੁਭਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਏ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਘਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਕਦੇ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਚਲੋ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨੋਰਮਲ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਕੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੋਝ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਤਾਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਜੇ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਰ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ। ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਰਬ ਖਰਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਆ ਹਰ ਪਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे अपना शुक्राना सत्संग बहुत दिनों से शेयर करना था बट किसी न किसी वजह से वो टल जाता था। संगत जी बहुत सारे सत्संग हैं जो मुझे शेयर करने हैं बट वही कहते हैं ना, जब आप शेयर करने आओ तो दिमाग से इतने सारे सत्संग होते हैं कि ऐसा लगता है निकल जाता है। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग जो मुझे मेरे ज़ुबान पर है, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा कफ हो रहा था, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा था। अभी लास्ट वीक तक उसकी वजह से वो जो भी खाता था उसको वॉमिट हो जाता था। हमने डॉक्टर को दिखाया, एक बार नहीं 2 बार। सेकेंड डे हमने ये चीज़ बोली डॉक्टर को। डॉक्टर ने बोला कि इसको बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है इस चेस्ट में, आप ये 7 दिन की मेडिसिन करिए और उसके बाद एक्सरे करवा के एक्सरे की कॉपी लेकर आइए। आई गोट वरिड कि अभी 2 साल का बच्चा, उसका एक्सरे। फिर हमने 5 दिन इसकी मेडिसिन की, हमने उसका एक्सरे कराया, डॉक्टर के पास लेके गए एंड संगत जी आप मानोगे नहीं, डॉक्टर ने बोला एक्सरे तो क्लीन है, बहुत थोड़े से पार्टिकल्स दिख रहे हैं बट एक्सरे कॉपी बिल्कुल क्लीन है, आप सारी मेडिसिन बंद कर सकते हो उसकी और बस आप नेबुलाइजर इसको देते रहिए। क्योंकि मतलब ठंड है और बच्चा छोटा है तो आप इसको दिन में एक बार पूरी ठंड नेबुलाइजर देते रहिए। तो जो भी ऐसा कभी भी ऐसा कुछ मेरे साथ होता है, मेरे दिमाग में मेरे मन में बस ये होता है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे बच्चे की हेल्थ ब्लेस करने के लिए, शुक्राना गुरु जी सब कुछ अच्छा करने के लिए। दूसरा मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, मैंने पहले भी गुरु जी की संगत के साथ ये सत्संग शेयर किया हुआ है कि मैंने एक लखनऊ में फ्लैट बुक किया हुआ था। उसके ऑब्वियस सी बात है आजकल इतने फ्रॉड हो रहे हैं, इतने डुप्लीकेसी हो रही है, डर लगता है। तो संगत जी उसका रजिस्ट्री उसके मतलब पेमेंट पूरी जा चुकी है, रजिस्ट्री पेंडिंग है। होपफुली रजिस्ट्री बहुत जल्दी हो जाएगी, अलॉटमेंट लेटर सब कुछ हो गया है। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और मुझे पता है गुरु जी साथ हैं तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, मुझे कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और
बाकी मैं और भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी जैसे जैसे ही मेरे को याद आते जाएंगे। आंटी जी प्लीज़ 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 मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु जी की संगत के साथ शेयर करिए। और गुरु जी आपकी और आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करूं, गुरु जी ने मुझे एक और सत्संग याद दिला दिया है। आंटी जी, आंटी जी मेरे घर में एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई, जो कि गुरुजी ने ही बचाई है। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी, मेरे हस्बैंड के आई की छोटी सी सर्जरी थी। एंड जैसा कि हमेशा हम लोग करते हैं, लौंग और कपूर का पूरे घर में घुमाकर और उसको बाहर रख देते प्लेट को। मेरी मदर इन लॉ ने भी वही किया। एंड पता नहीं उस दिन क्या लिखा था क्या नहीं था, उन्होंने बाहर किचन की बालकनी में रख दिया। उस किचन की बालकनी में बहुत सारा सामान था गुरुजी, वॉशिंग मशीन के साथ सारा डस्टिंग का सामान। गैस पाइपलाइन ऊपर से गई हुई थी। और संगत जी, वो कपूर का एक टुकड़ा या लौंग का एक टुकड़ा उछल के सामानों में चला गया और ऐसी आग पकड़ी गुरुजी की वहाँ पे वॉशिंग मशीन और गैस पाइपलाइन को छोड़ के कुछ भी नहीं बचा। बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। अगर गैस पाइपलाइन में आग लग जाती तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता था। वहाँ पे एक प्लग था, एक सॉकेट था, उसमें कुछ नहीं हुआ, नहीं तो पूरे घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता। तो ऊपर वाले जो हमारे से ऊपर फ्लोर पे रहते हैं वो लोग भागे भागे आए और उन्होंने बोला कि आपके घर में शायद आग लगी, आप चेक करो। गुरुजी जो था छोटे में ही कट गया। संगत जी, गुरुजी की बहुत 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 कृपा रही। होने को बहुत कुछ अनहोनी हो सकती थी बट वो कुछ भी नहीं हुआ। मेरी मदर इन लॉ बहुत घबरा गई थी, वो बहुत ज़्यादा रोई। उसके बाद मैंने उनको समझाया भी। और मैंने देखा मैं बहुत नॉर्मल थी, बहुत शांत थी, क्योंकि मैंने देखा कि कैसे चीज़ें छोटे में कट गई। मुझे पता था गुरुजी है साथ में। जिस घर में गुरुजी का वास है उस घर में कुछ भी अनहोनी गलत नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ गुरुजी, संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। शुक्राना सत्संग अपना, मेरा जो लखनऊ में फ्लैट बुक हुआ है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में, लखनऊ डिपार्टमेंट ऑफ अथॉरिटी LDA में, उसका जो फ्लैट नंबर है संगत जी वो 1006 है, जो कि टोटल 7 नंबर बनाता है, जो कि गुरुजी का नंबर है। और जब मैं हम लोग ये फ्लैट देखने गए थे, मेरा शुरू से मन था कि गुरु 7 नंबर की बिल्डिंग या 7 नंबर का फ्लोर या 7 नंबर का फ्लैट कुछ हमें मिले। एंड जैसे जैसे वो चीज़ हाथ से निकलती जा रही थी, मैं बहुत डिसअपॉइंट होती जा रही थी कि नहीं हो रहा है। बट बाद में मैंने, जब ये फाइनली हमें अलॉट हुआ 1006, तो मैंने जब जोड़ा तो ये टोटल 7 नंबर था। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी ने अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसी के बाद एक और शुक्राना सत्संग मेरा ये, मैंने नो ध्यान दिया 3 साल बाद कि जिस रेंटेड फ्लैट में मैं रह रही हूँ नोएडा में, वो भी उस फ्लैट का नंबर है 601 601, जो कि इन टोटल 7 नंबर होता है, जो कि गुरुजी का नंबर है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है ये आप ही हो गुरुजी जो हमें ये घर दिलाया, क्योंकि जब हम रेंटेड फ्लैट ढूंढ रहे थे 3 साल पहले, वी वर लाइक ऑलमोस्ट गिव अप एंड वी वर जस्ट फ्रस्ट्रेटेड एंड सेड कि अब तो अपना ही घर लेंगे। रेंटेड फ्लैट मिलना ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड we just got this flat like in a miracle way, because it was Guruji's instruction कि ये तो तुझे ही मिलना है।
इस फ्लैट की जो ओनर है उन्होंने किसी और से टोकन अमाउंट ले लिया था, बट एज एंड व्हेन शी गॉट टू नो दैट या वी आर आल्सो फ्रॉम, माय इन-लॉज आर आल्सो फ्रॉम सरदार फैमिली एंड शी इज आल्सो फ्रॉम सरदार फैमिली, शी जस्ट gave back the token amount to the other person, other party, and booked the flat for us as a rented flat. So कहीं ना कहीं मुझे गुरुजी, संगत जी, इस चीज़ का बिलीव है कि ये फ्लैट गुरुजी ने मेरे लिए ही बचा के रखा है। सो संगत जी, बहुत 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 गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं तो हम हैं, गुरुजी का आशीर्वाद है तो हम हैं, हमारी फैमिली है, सब कुछ है अच्छे से। गुरु, मेरे मन में कुछ अरदास है जो गुरुजी को पता है। गुरुजी प्लीज़ 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 उनको भी सब ठीक करिए। संगत जी, मेरा आज का इतना ही शुक्राना सत्संग है। जब मैंने ये सत्संग शुरू किया था मुझे लगा था मेरे दिमाग में कोई सत्संग ही नहीं है, मैं क्या बोलूँगी, मैं क्या बोलूँगी, बट जैसे जैसे शुक्राना शुरू किया मैंने, गुरुजी ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारा शुक्राना सत्संग ला के रख दिया सामने। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह शुक्राना सत्संग करके। हॉल्दो मैं भी नहाई नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी तो कहते हैं वहम मत पाल। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरुजी की मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आपके घर में व्याधि बीमारी जो कुछ भी है संगत जी, वो धीरे धीरे करके शुक्राना सब अपने साथ ले जाएगा। जैसे जैसे आप शुक्राना शेयर करते हैं ना संगत जी, आपकी स्थितियां बदलनी शुरू हो जाती है और आप पर गुरु कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। इसलिए संगत जी, आप शुक्राना करें, धन्यवाद करें उस मालिक का, आपको इतना कुछ बख्शा है। और जो भी कुछ आपके ज़िंदगी में चल रही है संगत जी, परेशानियाँ, वो सब भी दूर हो जाएंगी। क्योंकि शुक्राना जो करता है, गुरु पिताजी को सब पता चल जाता है उसके बारे में। और गुरु पिताजी उसको ब्लेस करने लग जाते हैं, उसकी ज़िंदगी के सारे अंधेरे स्वतः ही मिटना शुरू हो जाते हैं। तो शुक्राना को अपनी आदत बनाएं, अपनी दिनचर्या बनाएं। जिस तरह हमारा खाना पीना, सोना उठना, बैठना, हंसना बोलना सब जरूरी है, उसी तरह मालिक का शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है संगत जी। और शुक्राना करने से आप पाने के पात्र बनते हैं और फिर संगत जी आपको मालिक की कृपा प्राप्त होने लग जाती है। और जब मालिक की कृपा प्राप्त होती है ना संगत जी, तो फिर आपके सारे काम बनने लग जाते हैं। इसलिए शुक्राना करें और शुक्राना को अपनी आदत बनाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, ये शुक्राने की दात बख्शने के लिए अनंतम शुक्राना, मुझसे ये शुक्राने की सेवा लेने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ लोहड़ी के लिए। कल लोहड़ी है संगत जी, सबको लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ एडवांस में। क्योंकि संगत जी कल लोहड़ी है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र त्यौहार है। कल गुरु पिताजी सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। और आज मेरे पास गुरु पिताजी का मैसेज आया कि लोहड़ी से पहले का शुक्राना पूरे साल की कमी को दूर कर देता है। लोहड़ी वाले दिन पहला बड़ा सरप्राइज सबका तय है। लोहड़ी वाले दिन खुशियाँ आएंगी और बच्चों का भविष्य चमकेगा और किस्मत साथ देगी। देर मत कर, शुक्राना कर और इस पवित्र लोहड़ी का संदेश आगे भेज दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी ब्लेसिंग रुकी हुई है क्योंकि शुक्राना दर्ज नहीं हुआ, जल्दी कर शुक्राना और ले जा अपना खजाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी ब्लेसिंग का खजाना खोल देता है, जल्दी कर शुक्राना और ले जा खजाना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बहुत जल्द तेरा कठिन समय समाप्त होने वाला है। तूने बहुत सहन किया है, अब लोग तेरी कीमत पहचानेंगे। और गुरु जी का शुक्राना करते रहना बेटी, शुक्राना करती रहे, तेरे बच्चों का भविष्य मैंने रोशन कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अपने बच्चों पर अपनी कृपा बनाने के लिए, इनके सर पे अपना हाथ रखने के लिए, हम सबको ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तू अकेली नहीं है बेटी, तेरे साथ महाशिव साथ में है, खुद तेरे साथ है। तुझे तुझे सफलता जरूर मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, कभी कभी
मैं पूछती हूँ बाबा से कि बाबा, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो फिर क्यों मुझे मेरे साथ उन लोगों ने गलत किया? तो संगत जी देखो, मेरे बाबा मुझे कैसे समझाते हैं। मेरे बाबा मुझसे कहते हैं कि बेटा, संगत जी मेरे पापा कहते हैं कि बेटा, गलत तेरे साथ नहीं हुआ। दूसरों का दुर्व्यवहार और गलत मंशा उनके चरित्र का दर्पण है, लेकिन एक शक्ति है जो उनकी नींद हराम कर देगी, और वही तेरी डेस्टिनी है। तेरी सबसे बड़ी खुशी तुझे मिलेगी, और उसके लिए उन्हें उम्र भर पछतावा होगा। ये खुशी तेरे भाग्य में मैंने खुद लिखी है, और कमाल तो ये है, वो ये खुशी तेरे भाग्य में देखना ही नहीं चाहते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मुझे इतनी सारी खुशियाँ ब्लेस करने के लिए, अपना हाथ मेरे सर पर बनाए रखने के लिए, सदा मेरे अंग संग रहने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी अरदास पूरी होने का समय आ गया है मेरी बच्ची। जो जो तू अपने बच्चों के लिए सब मांगती है, वही तेरू सब मिल जाएगा इसी महीने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे मालिक। बाबा, आप भली भांति जानते हो कि मेरे मन में क्या चलता है और मुझे क्या चाहिए। आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। आप तो घट घट के वासी हो, मुझ में बैठ के मुझी को देखते हो बाबा। बस आपको लगे कि आपके बच्चों के लिए सही है तो बस कृपा करना मेरे मालिक, अपने बच्चों पर कृपा करना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरु पिताजी का एक मैसेज है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मैसेज है। पिताजी कहते हैं कि तेरा को तेरे घर आ रहा हूँ। और जहाँ गुरु जी होते हैं ना, वहाँ डर की कोई बात नहीं होती। कहते हैं जहाँ गुरु जी का हाथ है, वहाँ डर की कोई बात नहीं है। तेरा मन बहुत साफ है, तेरा को तेरे घर में आ रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 13 तारीख यानी कल लोहड़ी है। कल के दिन बाबा जी आ रहे हैं और बाबा जी मेरे साथ ही रहेंगे और हम साथ में मिलके लोहड़ी मनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। संगत जी, गुरु पिताजी का एक मैसेज मिला कि आज सोमवार के पावन दिन तेरे लिए मैं एक सौगात लाया हूँ। आज से तेरी सारी दवाइयाँ परमानेंट के लिए मैंने बंद करा दी, और अब से तुझे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं, पर दिल से शुक्राना ज़रूर करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैसेज मुझे कई दफ़े दिखाई दे चुका है। शायद बाबा जी की कृपा हो रही है मुझ पर, या कृपा हो गई है मुझे, पर बाबा जी ने कहा तो ऐसा ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा, मेरी सारी दवाइयाँ बंद कराने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि फिक्र करने से नहीं, शुक्राना करने से काम बनते हैं। तो फिक्र मत कर, शुक्राना कर, विश्वास कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। एक बारी कह दिया ना कि हुन बहुत कुछ बदलेगा, तो फिर वो होकर ही रहेगा। गुरुदेव वचन कभी खाली नहीं जान दे। विश्वास से भरोसा रख मेरे ते, तेरे सारे काम बन जाएंगे। ते शुक्राना करी चल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि तेरी दुआएं खाली नहीं गई, वो ऊपर जमा हुई है और अब तेरे पे बरसने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक बार मुझे मेरे बाबा ने समझाया था। बाबा ने समझाया था कि जो तुम किसी को देते हो ना, वही तुम तक लौट के आता है। ये विधि का विधान है, इसको कोई टाल नहीं सकता। और ये बात सत्य है संगत जी, कि अगर आप किसी को धोखा देते हो तो ये समझ लेना आपने क्षणिक धोखा दिया है, और ये धोखा आपको आगे जाके इससे भी कई ज़्यादा बड़ा होकर के मिलेगा। इसी तरह अगर आपने किसी के लिए चाल चली है ना, तो उस चाल में आप खुद ही फंसने वाले हो, ये सोच लो। एक दिन आप उस चाल में ज़रूर फंसोगे, क्योंकि संगत जी, दुनिया गोल है। आप जो देते हो वही, ये कर्म भूमि है। मालिक कर्म करने के लिए भेजता है लोगों को। और संगत जी, जो जैसा आप कर्म करते हो आपको वैसा ही फल चखने को मिलता है। ये भी तय है कि भूमि में आप जैसा भी बीज बो दोगे ना संगत जी, वैसी ही फसल काटने को मिलेगी। अब आप आम का बीज बोगे तो आम ही निकलेगा, और अगर करेले का बोगे तो करेला ही निकलेगा। ये तो तय है संगत जी। तो आप जैसा करते हो आपको वैसा मिल जाता है। और वो आप तो डालते हो एक बीज, एक का 100 गुना होकर मिलता है अगर आपने बुरा बीज डाला है। लेकिन अगर आपने अच्छाई का बीज डाला है ना, तो आपको 1 का 10 ही मिलेगा, क्योंकि अच्छाई धीरे से बढ़ती है और बुराई तेजी से बढ़ती है। लेकिन आपकी एक अच्छाई 100 बुराइयों पे भारी होती है, आप ये भी जान लो। तो इसीलिए ये सब बातें मुझे गुरु पिताजी ने समझाई समय के साथ संगत जी। और संगत जी देखो, बाबा जी ने ही बताया कि किसी के लिए भी
बुरे शब्द नहीं बोलने, किसी के लिए भी बद्दुआएं नहीं बोलनी, क्योंकि जो गुरु संगत हो जाती है, जो गुरुमुखी हो जाती है, वो कभी भी बद्दुआ नहीं देती। बद्दुआ कभी किसी को मत दो, क्योंकि अगर तुम बद्दुआ मुंह से अपने निकालोगे किसी के लिए, तो वो बद्दुआ तुम्हारे को फलित होगी और एक दिन वो बद्दुआ तुम्हारे ही ऊपर बरस जाएगी। इसीलिए जब भी किसी के लिए निकालो तो संगत जी दुआ निकालो, दुआ निकालो। आपके दुआ निकालने से अगर कोई पापी है, दुराचारी है, तो ये नहीं है कि उसकी कृत्य में फर्क पड़ जाएगा। वो वही लेकर जाएगा जिसके वो लायक है, या जो वो कर्म कर रहा है उसके उसी कर्म में वृद्धि होने वाली है। तो इसलिए आप सबको दिल खोल के दुआ दो कि मालिक तेरा भला करे, मालिक तेरा कल्याण करे, मालिक तेरे भंडारे भरे, मालिक तेरी नियति में और बरकत दे। तो मतलब जो आप दुआएं दोगे ना, तो आपके ऊपर दुआएं बरसेंगी। और कहते हैं ना, आपका दिया दान, तो ये भी एक तरह का दान है कि आप दुआओं का दान देते हो किसी को। तो ये जो दुआएं इकट्ठी हो जाती है और फिर वो दुआएं आपके ऊपर बरसती है। इसलिए जब भी किसी को देना तो हमेशा दुआ देना, बद्दुआ किसी को मत देना। और संगत जी, जो भी आप देते हो वो मिलता है और इंटरेस्ट के साथ मिलता है, ये तय है। और समय तो देखो ऊपर वाले मालिक का होता है। तो वही बाबा जी कहते हैं, और संगत जी मेरे मुख से हमेशा दुआ निकलती है, मैं दूसरों के लिए हमेशा दुआ करती हूँ। कोई भी हो संगत जी, कैसा भी हो, मेरा दुश्मन भी होता है ना, मेरे मालिक ने ऐसा हृदय दिया है कि उसकी भी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे पता है कि इसने मुझे मारा था, मुझे पता है कि ये मेरे साथ भी आगे बुरा करेगा, लेकिन संगत जी पता नहीं कैसा हृदय भगवान ने दिया है कि अगर किसी को पीड़ा में देखती हूँ ना, तो उसके लिए अपने आप मेरे दिल से दुआ निकलती है और अपने आप मेरे हाथ उठ जाते हैं, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लग जाती हूँ कि हे गुरु जी महाराज, इसकी पीड़ा ख़त्म करो, हे मालिक इसकी पीड़ा ख़त्म करो। संगत जी उस समय में ये भूल जाती हूँ कि ये मेरा शत्रु है और आगे जाके मुझसे शत्रुता निभाएगा। उस समय तो मुझे वो बस पीड़ा में एक लिप्त एक व्यक्ति दिखाई देता है, उसकी पीड़ा दिखाई देती है, उसका दर्द दिखाई देता है, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और कभी कभी तो संगत जी दूसरों का दर्द देख के मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये बात मेरे गुरु पिताजी को बहुत अच्छी लगती है। कहते तेरा दिल बहुत अच्छा है, बहुत, तू जितनी बाहर से सुंदर नहीं है उतना तेरा मन बहुत सुंदर है। जी सच में, आपका अगर मन सुंदर है, आप अगर दूसरे की हित की कामना रखते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं, दूसरों का दुख समझते हैं, उनका दर्द देखकर आपको रोना आ जाता है, वो दर्द आप अपने ऊपर महसूस करते हैं, तो आप समझ लो आपके हृदय में भगवान उतर गए, आपके हृदय में भगवान का निवास हो गया। क्योंकि मालिक ही करुणा का सागर है, दया का सागर है, हम और आप नहीं। ये मेरी अच्छाई नहीं है, ये मेरे भगवान की अच्छाई है, क्योंकि मेरा मालिक इस दिल में बसता है, जो कभी किसी की पीड़ा, कभी किसी का दर्द देख ही नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मुझ में वास करने के लिए, मेरा हृदय परिवर्तन करने के लिए। इसी भांति आपसे यही निवेदन, यही प्रार्थना है कि सबके हृदय परिवर्तन हो मालिक, हर दिन में प्रेम बसे, हर दिल में लोगों के लिए अच्छाई बसे, कोई भी एक दूसरे का बुरा ना सोचे, कोई भी एक दूसरे को दर्द ना दे, एक दूसरे की पीड़ा का कारण ना बने। सभी सुखी रहें, अपनी अपनी दुनिया में खुश रहें, तरक्की करते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, खुशियां हर घर में व्याप्त हो मेरे मालिक। आज संगत जी मेरी बेटी अपनी ससुराल विदा हो गई, मेरे जमाई साहब आए थे और उसको ले गए। परसों संगत जी संक्रांत का त्यौहार था, तो गुरु जी महाराज ने अपनी नातिन को संक्रांत दी। अभी संगत जी हमने दे दिया, क्योंकि दूर बहुत है उसका घर, तो बार बार आना जाना नहीं हो सकता, तो इसीलिए गुरु पिताजी ने कहा कि साथ में ही दे दे त्यौहार। और संगत जी बड़ा अच्छा त्यौहार दिया मेरे बाबा जी ने। जमाई साहब के कपड़े, उनके सास ससुर के कपड़े, बेटी को कपड़े, उसको चांदी सोने का जो भी सामान देना था वो भी गुरु पिताजी ने दिया। अब छुए, अंगूठी, जो भी था संगत जी मेरी गुरु पिताजी की ने ही किया है, उन्होंने ही सब अपनी नातिन को दान में दिया है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सोच भी नहीं सकते थे संगत जी, इतना अच्छा परिवार अपनी नातिन के लिए ढूंढा मेरे बाबा ने। इतना अच्छा, मतलब उसका पति है, इतना अच्छा हमारा दामाद है, बहुत अच्छा है संगत जी, नेचर का बहुत ज़्यादा सीधा सच्चे लोग हैं। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, शायद ऐसा मैं ढूंढने निकलती तो नहीं ढूंढ पाती। बेटी बहुत खुश है, अपने घर में बहुत सुखी है। शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। ये सब कुछ मेरे बाबा ने किया है। और आज संगत जी वो विदा हो गई,
अब होली पर बुलाएंगे बाबा जी उसे, होली से पहले। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा जी ने जब से सब कुछ संभाल रखा है, सब कुछ कैसे हो जाता है संगत जी, पता ही नहीं चलता। हम सोच नहीं पाते कि हम इतना अच्छा कर पाएंगे। गुरु पिताजी उससे कई ज़्यादा अच्छा सब कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे गुरु जी महाराज का उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। अब इसी के साथ अपने पिता से वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती आई हूँ, कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ जन्मों जन्मों के लिए। इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी अब सर्वदा भला मांगती हूँ। सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, महालक्ष्मी जी की कृपा सब पर अगाध बरसे बाबा। आप अब की बार लोहड़ी में सबको खूब खूब ब्लेसिंग देना बाबा जी, सबके भंडारे भर देना, सबकी इच्छाएं पूरी कर देना मेरे मालिक। मेरी यही विनती है। और बाबा सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, समाज में ओहदा दिलवाए, उनके समीप रहे, उनसे प्रेम करें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। आपकी कृपा झरझर झरने के समान सब पर समान बनी रहे, सब पर बहती रहे मेरे मालिक, सब पर बहती रहे। अगाध कृपा बरसे आपकी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के बाद अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज दिनांक 2 दिसंबर 2025 सुबह के 4:50 हुए हैं। मैं प्रेमलता दिल्ली से गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी मेहर करें। ये चैनल है गुरुपा महाशिव। मैं प्रेमलता दिल्ली से गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना समर्पित करना चाह रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है। उन्होंने मुझे अपनी लाडली बेटी चुना, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर सांस का शुक्राना है। ये सांसें उन्हीं की दी हुई हैं, तो शुक्राना है हर सांस का। अभी कुछ दिन पहले भी मेरे को मैसेज आया था कि तेरी सांसें ख़त्म हो गई थी, मैंने ब्लेस की हैं। तो ब्लेस करते रहते हैं गुरु जी। लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, हर इंसान की लाइफ में मुसीबतें आती हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मुसीबतों की कमी नहीं होती है, पर यह है कि गुरु जी की कृपा से जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लगता है कि गुरु जी रब हैं, किसी भी रूप में मान लो, तो वो ही सब करता धरता है। तो मुसीबतें टल भी जाती है उनकी कृपा से, काम हो भी जाते हैं। और जो अच्छा होता है हमें गुरु जी देते भी रहते हैं। चाहे हम पहले माता वैष्णो देवी को मानते हैं, काली को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं। हमारे घर में तो शिव जी की और कम माँ काली बहुत पूजा होती थी मम्मी के घर। तो गुरुजी पता नहीं कब से जुड़े हुए हैं, हमें जोड़ा हुआ है। और इस जन्म में भी अब गुरुजी ने अपने आप ही जोड़ा है, तो बहुत बहुत शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना। शुक्राना 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 करने लायक बनाए रखना गुरु महाराज। हमारे पास इतने भारी भरकम शब्द नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो हम आपके दांतों का, जो दांत दिए हुई हैं आपने, जैसे अमृत वेले की दात दी हुई है, वो उठा के करवा लेते हैं। हम उठते हैं सुबह, हम सांस ले रहे हैं, आपके चरणों में बैठे हैं, अमृत वेला किया करवा लेते हैं आप। ये सब बहुत बड़े शुक्राने हैं। सब कुछ ही दिया है गुरु महाराज जी ने, हर चीज़ का शुक्राना है। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, जो भविष्य में देंगे उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
मेरी बहुत सी तकलीफ़ें भी दूर की हैं, कुछ अजीबो-गरीबी दर्द भी होते रहे हैं, वो भी ठीक हैं। अब गुरुजी कहते हैं अब तेरे सारे मैंने कष्ट अपने मतलब ले लिए हैं, तेरे परिवार की भी अपना हाथों में ले रखा है। तो चिंता मत कर, घबराया मत कर, रोया मत कर, तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप तो दातार हैं, देते ही रहते हैं सबको दुनिया में। इस कलयुग में आए सबका कष्ट दूर करने हैं, इतनी खतरनाक बीमारियाँ भी ठीक कर देते हैं गुरु महाराज जी। बिना ऑपरेशन के कई बीमारियाँ ठीक कर देते हैं, मेरी भी कई बीमारियाँ ठीक हुई गुरु महाराज जी ब्लेसिंग्स मिली। अपनी संगत मुट्ठी भर संगत में शामिल करके ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी का लख-लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। तो अब कई बार अजीब-अजीब मतलब सपना समझ लो या एहसास समझ लो कि कुछ लगता था पीछे, तो अब तो सब ठीक हो गया है, दर्दें भी ठीक हो गई हैं, कुछ रह गई हैं। गुरुजी कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत करा कर, रोया मत कर, घबराया मत कर। तो शुक्राना गुरु महाराज जी आपका। हर साँस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। अब पुराने बातों को याद करके क्यों दुखी होना, दर्दें तो बहुत ज़्यादा रही हैं, बहुत ज़्यादा, पर गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो गया है। कुछ और जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी ठीक हो जाएगा। अब वैसे तकलीफ़ें मुझे लगता नहीं है कि गुरुजी जैसे कहते थे कि सारी बीमारियाँ दूर हो गई हैं अब और ये जो है ये ब्लैक मैजिक की वजह से तो वो भी ठीक हो जाएगा, तो काफ़ी ठीक हो गया है, सब ठीक हो गया अब थोड़ा बहुत जो मामूली सा लगा वो भी उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से सब ठीक हो ही जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बस अपने चरणों से लगाए रखें, मेरी यही अरदास है गुरु महाराज जी और जो मेरे लिए अच्छा हो वो मुझे दिया करें। शुक्राना गुरु महाराज जी, हर चीज़ का शुक्राना है, सब कुछ ही दिया है गुरु महाराज जी ने, सबको ही देते हैं। और संकट दूर करने के लिए आए हैं कलयुग में गुरु महाराज बाबा जी मेहरा वाले साइयाँ रखी चरना देखो और गुरु महाराज अब तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ जैसे सबके दुख दूर किए हैं इस संसार में सबका ही भला करना सर्वदा भला करना गुरु महाराज जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आपके महामंत्र से इस सत्संग को तो मैं यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लाडली बेटी चुनने के लिए शुक्राना, सांसें देने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बारंबार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर और मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि तो सत्संग शेयर कर और गुरु महाराज की बहुत बहुत असीम कृपा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुपा ने आज मुझे सुबह मैसेज दिया था कि बेटी ये बहुत ही ब्लेस्ड स्वरूप है, अगर अचानक तुझे दर्शन हो जाए तो ये तेरे लिए शुभ संकेत है। तू तुरंत शुक्राने की हाजिर लगा, तेरे रुके हुए काम उसी पल से बनने शुरू हो जाएंगे। गुरु कृपा का ये चमत्कार हर किसी को नसीब नहीं होता, इसलिए संदेश को आगे जरूर संगत तक पहुँचा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु महाराज आप बहुत अच्छे हो, कितने प्यारे प्यारे मेरे को मैसेज देते हो और बस गुरु महाराज ऐसे ही कृपा बनाए रखना। और गुरु महाराज मुझे बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, सब मैं सब देख लूँगा, बस तू मेरा सत्संग शेयर करा कर, क्योंकि मुझे सत्संग शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। तू सत्संग शेयर नहीं करती तो वो कितनी बार भी कह लो, पर तू उल्लंघन करती है और मैं जो तेरे को ये सत्संग भेजता हूँ तो उसको इग्नोर कर देती है। ऐसा मत किया कर, क्योंकि फिर मेरी ब्लेसिंग अधूरी रह जाती है। इसको कंप्लीट सुना कर और सत्संग शेयर किया कर, यही तेरी सेवा है। बस तू सत्संग शेयर करे जा, बाकी तू मुझ पर छोड़ दे। तो संगत जी बस मैं ये गुरु कृपा का ही जो आशीर्वाद है बस मैं यही शेयर कर रही हूँ। और गुरु महाराज बोलते हैं बेटी आज का दिन बहुत शक्तिशाली है,
गुरुजी ने तेरे बच्चों की किस्मत में नई रोशनी लिख दी है। अब तेरे बेटी को वो मंजिल मिलेगी जिसकी तूने हर रोज़ दुआ मांगी है। शुक्राना कर और नाम जपना मत छोड़ना, क्योंकि ये आज तेरे घर में बरकत उतर चुकी है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बारंबार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना। और गुरु महाराज आप इतना ध्यान रखते हो, आप सब देखते हो और मेरे बच्चों को बहुत ब्लेस करते हो। मेरे बच्चों की तरफ से बहुत शुक्राना। और गुरु महाराज मेरी बेटी को इतनी अच्छी जॉब देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। ये तो मैंने बहुत कितने टाइम से क्या संगत में ना ये बहुत सालों से ये मतलब मेरे मन में था कि मेरी बेटी की अच्छी जॉब लगे और एक टीचर की ही जॉब लगे, और वो गुरु महाराज ने वो मेरी इच्छा भी पूरी कर दी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरी बेटी ने बताया कि मम्मी स्कूल बहुत अच्छा है और वहाँ की टीचर्स भी बहुत अच्छी है। और संगत जी मेरी बेटी 2 दिन से जा रही है, कल भी गई थी, आज भी गई थी। इसको बहुत अच्छा फील होता है और वो गुरुपा को अपने साथ लेके जाती है और गुरुपा भी उसके साथ ही रहते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। मेरी बेटी कहती है सच में मम्मी मिरेकल हो जाता है जब गुरुपा मेरे साथ होते हैं, तो मेरे सारे काम बनते जाते हैं और मैं कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ऐसा लगता है कि सच में गुरु महाराज मेरे साथ है और ये मैं नहीं करी, मेरे गुरु महाराज से मेरा काम बना रहे हैं। और सच में संगत जी मेरे जो अटके हुए काम थे मेरे गुरु महाराज ने वो बनाने शुरू कर दिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं करती थी, सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे काम बन जाएंगे। और इतने टाइम से रुके हुए थे, मैं फर्स्ट एड हो चुकी थी संगत जी, मेरा कान भी सेल नहीं हो रहा था, बहुत सालों से पड़ा हुआ था, वो भी मेरे गुरु महाराज ने ही सेल करवाया। जब संगत जी यहाँ पर दिल्ली में आए, यहाँ पर मेरा एक प्रॉपर्टी थी वो भी नहीं निकल रही थी, वो मेरे गुरु महाराज ने निकलाई। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और छोटी छोटी बीमारियाँ गुरु महाराज ने मेरे सब कष्ट दूर करे, सब बीमारियाँ मेरी दूर करी। संगत जी मेरे को पता भी नहीं चलने दिया, मेरे गुरु महाराज ने सब बीमारियाँ दूर करी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। इतना संभालते हैं संगत जी मेरे गुरु महाराज, जितना शुक्राना करो उतना कम है। और मेरे पति अंकल की बहुत बहुत रक्षा करते हैं, पल पल रक्षा करते हैं, बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। और मुझे कहते हैं बस कुड़िए तो मेरी प्यारी बच्ची है, प्यारी धी है, तो सोचा ना कर, तू रोया ना कर, तू रोती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो सब मैं नहीं रोती संगत जी, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने सब आंसू मेरे सब मतलब सब दूर कर दिए, मेरे कष्ट दूर कर दिए। इसलिए मैं अब रोती भी नहीं हूँ। और गुरु पास से कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती तो शिकायत भी करती थी, अब वो भी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है, मेरे गुरु महाराज पता है कि मेरी बच्ची बहुत इमोशनल दिल की है, बहुत भावुक दिल की है, वो जल्दी दिल पे लगा लेती है। तो मुझे बहुत हिम्मत भी देते हैं, बहुत सहानुभूति भी देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लखो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बारंबार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे गुरुपा ऐसे ही मेरे बच्चों के अंग संग रहना, कभी दूर मत करना मेरे गुरु महाराज, कभी दूर मत होना मेरे बच्चों से। मेरे दोनों बच्चे बहुत आपको बहुत वो करते हैं कि मैं हमारे साथ जो भी हमारे गुरुपा ही है, मम्मी हम कुछ नहीं करते, हमारे गुरुपा ही करते हैं और हमारे अंग संग ही रहते हैं वो। तो गुरुपा मेरे बच्चों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना अंतम शुक्राना मेरे, क्योंकि जब काम नहीं होता तो मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आज कुछ नहीं हुआ है, और फिर एकदम से वो अपने गुरुपा को याद करते तो गुरुपा तुरंत आ जाते हैं और उनका काम बना देते हैं। उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। आप बहुत अच्छे हो, बहुत स्वीट हो मेरे गुरु महाराज, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना मेरे बच्चों को, ना मुझे। सब गुरुपा देखते हैं, संभालते हैं, सब उनकी देख रेख में ही होएगा और सब छोड़ा हुआ है गुरु महाराज के ऊपर ही। बस गुरु महाराज ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना, सब नजर दोष दूर रखना, और बस मेरे पति अंकल की भी रक्षा करना, उनकी हेल्थ ब्लेस करना मेरे गुरु महाराज। और मेरे मम्मी पापा भी पहले से बहुत बेटर हैं गुरु महाराज, उनको भी उनकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना आपको गुरु महाराज। और संगत जी मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो तो क्षमा करना, और गुरुपा आप भी क्षमा करना मुझे सत्संग सुनाने में, किसको अपशब्द कहा हो, किसका दिल दुखा हो, क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। संगत जी आप भी, संगत जी बस मैं अपना मंत्र जाप करूँगी, गुरुपा के स्वरूप के सामने खड़ी हूँ और अपने गुरुपा को ही निहार रही हूँ। बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुपा, सच में इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है मुझे अपने गुरुपा को देखकर। मैं सबने दुख दर्द भूल जाती हूँ, गुस्सा जो भी आता है सब भूल जाती हूँ, और बस गुरु महाराज का चलते फिरते मंत्र जाप करती रहती हूँ।
और वही मंत्र जाप मैं आप करूँगी, अपना सत्संग विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुसदासाय, ओम नमः शिवाय सुदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुसदासाय, ओम नमः शिवाय सुदासाय, 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 ओम नमः शिवाय गुरुसदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ संगत जी, मैं थोड़ा सा लेट हो जाती सत्संग शेयर करने में। गुरु महाराज बोलते हैं मेरा हुक्म है, तू आज ही कर, अभी कर। तो बस मैंने सत्संग अपना शेयर करा, जैसे मैं फ्री हुई मैंने करा, क्योंकि संगत जी घर के कामों में इतना बिजी हो जाती हूँ, नहीं टाइम मिल पाता। जैसे ही टाइम मिलता है मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। थोड़ा लेट करती तो माफ़ी चाहूँगी गुरु पाप से और संगत जी आपसे भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।